morning, all of you, my dear students. Today we are going to start our 11th class, chapter 3, motion in a straight line. Okay, and from which we are going to start graphs in motion. Okay, students. So we already know that graph in motion. Our first graph we have made between displacement and time. Okay. So first we are going to study displacement time graph. Okay students, so we are going to start displacement time graph. Okay, now with this graph we just know here is one y-axis and this is x-axis, and within y-axis this is displacement, and which is measured in meter, and this is time that we measure in seconds. Okay, now suppose we just make this graph like this. Okay, this is a straight line, and from x-axis it makes an angle theta. Okay, so from x-axis it makes an angle theta. So this angle theta show the slope of this graph. Okay, यहाँ पे जो एंगल है, एंगल थीटा is showing the slope. ओके, और स्लोप का मतलब देखिए, अगर ये एंगल थीटा यहाँ छोटा होता है सो मीन्स स्लोप आपका क्या होगा, कम हो गया. अगर ये एंगल थीटा ज्यादा होता है तो स्लोप आपका ज्यादा हो गया. ठीक है, so this also you know very well. Now angle theta slope we already know y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay, अगर हम यहाँ पे स्लोप की वैल्यू निकालें, so what should be the value of slope? It should be y2 minus y1. अगर हम यहाँ देखें, so this is displacement s over air. Okay, suppose you just take 2 points, this is point 1 and here this is point, this is s1, this is s2, this is s1. Okay, within the same way here time this is t1 and this is time t2. Okay, so on behalf of this what we are going to do at y2 minus y1, this is s2 minus s1 upon t2 minus t1. Okay, and within slope we are getting delta s upon delta t. Okay, and we already know that delta s upon delta t is only the velocity. So here the slope gives us velocity. So in displacement time the slope tells us about the velocity. Okay, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके की वेलोसिटी है. So equal distance is traveled in equal interval of time. So this is the graph of uniform velocity or constant velocity. ठीक है. ओके, अब इस बेसिस पे हम यहाँ एक क्वेश्चन करते हैं. सपोज मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया. ओके, सपोज this is one graph we have made over here, 0 a b c. Okay, and here this is displacement in meter and this is time in seconds. Okay students, so you just think, suppose this is 5 seconds, this is 10 seconds and this is here 15 seconds. Now this is here 10 seconds and this is here suppose 20 seconds. Now sorry, 20 meter, this is 10 meter, this is 20 meter, this is y-axis and this is x-axis. So how you calculate this? You have to find what you have to find velocity. Find velocity of an object between where OA, AB and BC. Okay, so between these graph or at these graph you have to find the velocity of an object. Okay, so you just see here how you calculate its velocity. VOC, just find VOC. Okay,
formula of slope. Okay, this is only the velocity. So y2 minus y1 upon x2 minus xy. So here y2 is, how much is y2? This is 10 minus 0 upon, this is what, 5 minus 0. So VO, this is OA, not OC, sorry, this is OA. So this is 10 upon 5. How much you got? 2 meter per second. How much you got? 2 meter per second. Okay. Now again velocity at AB. Okay. वैसे आप लोगों को 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि अगर ग्राफ आपका कहाँ आ जाए पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, then in that case क्या मिल जाएगा? The velocity is 0. Okay. और हम देखते हैं कैसे आती है 0. Okay. So this is at B and this is A. B और A पे 10 ही, तो आपका क्या हो जाएगा? 10 minus 10. और ये आपका क्या हो जाएगा? This is 10 minus 5. Okay. 10 minus 5. So what you are getting? 0. Okay. 0 meter per second. 10 minus 10 become 0. Okay. Now after that, 0 meter per second. Okay. अब इसके बाद और हम देखते हैं वेलोसिटी एट BC. वेलोसिटी एट BC कितना आएगा? व्हाट इज द वेलोसिटी एट BC? ये आपका यहाँ C पे 20 है, B पे 10 है. सो यू जस्ट गेट 20 minus 10 अपॉन, ये आपका कितना हो जाएगा? 15 minus 10, ये आपका हो जाएगा. तो BBC is equal to कितना होगा? BBC is equal to ये 10 upon 5. So again you get 2 meter per second. Okay. बड़ा इजी था, आपने निकाल लिया बहुत इजीली. ये कॉन्सेप्ट आपने यूज किया, अच्छा निकाल लिया. ठीक है. ओके. अच्छा, अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं. ये क्या चेंज करते हैं? सपोज ये आपका C यहाँ से ना मिलके ऐसे जा, ये ग्राफ हम चेंज करते हैं. ठीक है. And this is here C. अब ये C आपका यहाँ से तो हट जाएगा, ये आपका इधर आगे से. This is C है. Okay. Now in this case, what is B? BC here. Okay. Final ये देखिए S2. Final 0 minus ये आपका 10. Okay. ये आपका 50 minus 10. कितना मिला? BBC is equal to minus 10 upon 5 is equal to minus 2 meter per second. कितना मिला? minus 2 meter per second. ओके. अच्छा, पहले ये वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव. क्या बात समझ में? यहाँ आपकी वेलोसिटी नेगेटिव. वेलोसिटी नेगेटिव कैसे है? ठीक है. क्या हमने देखा? हमने देखा क्या डिफरेंस? यहाँ ग्राफ ऐसे, एंगल आपको दिख रहा है, यहाँ भी ग्राफ ऐसे ही, यहाँ एंगल आपको दिख रहा है. दिस इज एक्यूट एंगल एंड दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल. ओके. अब इससे हम और एक यहाँ रिजल्ट देखते हैं, बनाते हैं. व्हाट इज द रिजल्ट? इफ द एंगल इज ओके, सो इफ एंगल इज एक्यूट, इफ एंगल इज एक्यूट इज थीटा इज स्मॉलर देन 90 डिग्री. So क्या आएगा? velocity is positive. Velocity is positive. Understand? Now second concept आपने क्या यहाँ से देख लिया? If angle is obtuse, कैसा एंगल बना? obtuse angle. Then obtuse के अंदर क्या होता है? obtuse के अंदर होता है theta is greater than 90 degree. Okay, then velocity is negative. Velocity is negative. Okay. और बढ़िया, आपने ये देख लिया इतना. ठीक है. अब इसमें देखते हैं. अब यहाँ सीधा सा लॉजिक लगाते हैं. देखिए, अगर आपके ग्राफ ऐसे ऐसे आ रहे, ऐसे ऐसे आ रहे, ठीक है, ये आपकी लाइन देखिए सभी एक्यूट एंगल. ओके, पॉजिटिव, आंख बंद करके पॉजिटिव. ओके. अच्छा, सेकेंडली अगर आपके ग्राफ ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ऐसे लाइन खींची, ठीक है, और ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये आपका नेगेटिव. समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से. ठीक है. ओके. अब हम बढ़ते हैं आगे इसी के साथ अगले ग्राफ. ठीक है. नेक्स्ट ग्राफ हम देखते हैं वही डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ के अंदर ही
अब क्या सिचुएशन आप, ओके, एक बात यहाँ हम और देखते हैं, चलो हम आगे देखेंगे। You all have to understand the concept। जो यहाँ आपको कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िएगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाए तो फिजिक्स नहीं पढ़ पाए। ओके, सो कम टू अवर नेक्स्ट। ये आपका दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, अब बात है डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखना, ठीक है। और ये हमारा सेकंड में है, तो जीरो में है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज, ओके। अब यहाँ पे सपोज मैंने एक ग्राफ बना दिया, ऐसे ये ग्राफ बना दिया मैंने भाई, इस तरीके का ग्राफ बना दिया। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है, डिक्रीजिंग का नहीं, इंक्रीजिंग का। 9th क्लास के बच्चों को भी पता है, आप तो 11th में, ठीक, ओके। इंक्रीजिंग का, अभी इंक्रीजिंग का कैसे देखिए, इंक्रीजिंग का ये आप थोड़ा सा यहाँ से 1 सेकंड चले, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 सेकंड चले, थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 3 सेकंड चले और ज्यादा हो गया, 4 सेकंड चले अब तो बहुत ही ज्यादा होगा, और 5 पे तो तेजी से दौड़ रहा है। मींस क्या बात समझ में, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ओके, अब ये कहां तक हम लाइन बना के देखेंगे, ठीक, सीधे कॉन्सेप्ट से देखते हैं कैसे। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसमें ग्राफ में, अभी इससे पहले जो जहाँ पे एंगल छोटा वहाँ पे वेलोसिटी कम, और जहाँ एंगल ज़्यादा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि स्लोप आपका बढ़ेगा। ओके, नाउ यू जस्ट सी, अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ये ले लिया, दिस इज एट पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये 2 पॉइंट मैंने ले लिए और मैं अब इनके बनाऊंगा टेंजेंट। मैंने टेंजेंट बनाया, दिस इज द टेंजेंट एट पॉइंट ए, पॉइंट ए से टेंजेंट बनाया तो ये ग्राफ आपका इधर बन रहा है। ओके, ये θ1 बन गया, दिस इज एंगल θ1। अब मैं यहाँ देखता हूँ, ऐसे बना ऐसे बना, ठीक है, ये पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट बी। नाउ दिस इज θ2 व्हिच इज ग्रेटर, पहले ये आपका ए आया फिर आपका बी आया, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, मतलब आपका सीधा सीधा यहाँ पे एंगल इंक्रीज हो रहा है, और जब एंगल इंक्रीज हो रहा है तो आपका वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ओके, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। चलो मैं सीधा सीधा बनाता हूँ, ऐसे ऐसे बनाता हूँ, देखो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए नीचे बनाऊंगा, इंक्रीजिंग के लिए ऊपर बनाऊंगा। ओके, v इज इंक्रीजिंग हियर। अच्छा, v इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बताइए v इज हियर, कैसा एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है एक्यूट, सो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। ओके, वेरी वेल, इतना हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखिए, क्या, देखिए ए बी, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, whenever the velocity gets increases with time, तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम उस कंडीशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन। यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन भी हो रहा है। अगर यहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव हो, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज वो बाद में देखेंगे। एक्सेलरेशन कैसा होता है, पॉजिटिव। देखिए एक्सेलरेशन में आपने 2 चीजें पढ़ी हैं, अगर एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी टाइम के साथ में, और अगर एक्सेलरेशन आपका डिक्रीज हो रहा है मींस वेलोसिटी आपकी टाइम के साथ में डिक्रीज हो रही होगी। तो ये 2 टाइप का एक्सेलरेशन आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। ओके, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। इन द सेम वे मैं यहाँ पे अपना और एक ग्राफ बना देता हूँ। ये भी ग्राफ आपने पढ़ा हुआ है, ये ग्राफ आपने बिल्कुल पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ये आपका मीटर, ये आपका टाइम इन सेकेंड,
सेम। अच्छा अब यहाँ देखिए, सपोज ये आपका पॉइंट हो गया, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। दो पॉइंट हमारे हो गए। अब इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, वही सेम प्रोसेस। ये हमने इसको आगे बढ़ा लिया एक्स एक्सिस को, अगर हम यहाँ इसका टेंजेंट बनाते हैं तो ये टेंजेंट यहाँ बनेगा, और जब ये टेंजेंट यहाँ बना, दिस इज द एंगल, तो ये एंगल कितना आया, दिस इज एंगल थीटा। अब हमने दूसरा ले लिया, दिस इज पॉइंट बी। अगर मैं पॉइंट बी पे बनाता हूँ तो ये आपका तो कहाँ तक आएगा, ये यहाँ से ऐसे आएगा। ओके चलो इसको यहाँ ले लीजिए, बी पॉइंट इज हियर। If B point is here, तो ये देखिए कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे जाके ये आपका थीटा क्लियरली दिख रहा होगा। थीटा 1 is greater than थीटा 2, थीटा 1 is greater than थीटा 2। A पॉइंट पे थीटा ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, B पॉइंट पे थीटा कम, वेलोसिटी कम। ओके सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीजिंग। ओके V डिक्रीजेस, मैंने बना दिया साइन डिक्रीज का, नीचे डिक्रीज ऊपर इंक्रीज, ठीक है। ओके नाउ यू जस्ट टेल मी अबाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन यहाँ से क्लियर दिख रहा है हमें, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। ओके सो हियर ए इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ओके ये चीजें आपने होगा। अब इसके बाद में देखते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस कर ले, एक दो कॉन्सेप्ट और देखते हैं। अगला एक कॉन्सेप्ट यहाँ देखते हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव की बात आ गई। अब इसको एक सिंपल फॉर्मेट में देखते हैं। देखिए ये अगर आपका एक्सेलरेशन बनता है इस तरीके से, कॉनकेव कहाँ है, कॉनकेव है अपवर्ड, कॉनकेव इज अपवर्ड, देन एक्सेलरेशन ए इज पॉजिटिव। ये ध्यान रखिएगा, किसमें है ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम का, ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है। सेकंड अगर मान लीजिए चलो आपका कर्व कैसा आता है, आपका कर्व ये बाउल आपका ऐसे आ गया उल्टा। ओके कॉनकेव पार्ट कहाँ है, ठीक है, आपने कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ा होगा वैसे, कहाँ 10th क्लास में ऑप्टिक्स में, ठीक है। तो ये कॉनकेव आपका अगर डाउन है, DOWN, ओके कॉनकेव डाउन है, तो उस वाली कंडीशन में ए क्या हो जाएगा, ए इज नेगेटिव, ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ओके इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। एक और अब यहाँ सीधा सीधा हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि कब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ओके ये हमने यहाँ देख ही लिया, व्हेनेवर द वेलोसिटी डिक्रीज। एक और है इसमें कॉन्सेप्ट कि ये बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये देखिए अगर आपको इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन, ठीक है, आपके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन जैसे या तो ये पॉजिटिव या फिर ये नेगेटिव, ये दोनों कैसे होते हैं, सेम। कैसे हो रहे हैं, सेम। किसके, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन अगर सेम आपको मिल रहे हैं, इन दैट केस क्या होगा, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा इसको, ठीक है। ये आपका फर्स्ट। सेकंड पॉइंट देख लीजिए इसी का। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है कि अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के साइन कैसे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन। ऐसे भी हो सकता है ये एक्सीलरेशन का नेगेटिव और वेलोसिटी का पॉजिटिव, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, अब यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके एक दो क्वेश्चंस हमने अभी देखे, अब हम और देखते हैं आगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के कुछ नए क्वेश्चन। कि नए क्वेश्चन कौन से हैं, ये सब हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं,
ठीक है, ओके। चलो और देखो आगे एक क्वेश्चन हम यहाँ बनाते हैं इस तरीके का। सपोज ये हमारे पास में ग्राफ, इस तरीके का ग्राफ, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करते हैं पहले, दिस इज इम्पोर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सपोज ऐसे ग्राफ बन रहा है, दिस इज टाइम t इन सेकेंड्स, ओके, दिस इज इन मीटर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज इन मीटर डिस्प्लेसमेंट, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, ओके। अच्छा ये ग्राफ आ गया, ठीक है, फाइन। अब यहाँ देखते हैं, सपोज हमने ये पॉइंट ले लिया, दिस इज पॉइंट हियर। हमें यहाँ बताना है कि यहाँ पे वेलोसिटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहाँ ग्राफ के साथ में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। और these three things we have to calculate over here, okay? मैंने ये पॉइंट ए ले लिया, पॉइंट ए पे मैंने यहाँ पे सीधा सा ग्राफ बनाया, गलत सीधा बनाया ऐसे, चलो ये पॉइंट यहाँ, ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया। अब ये आपका ग्राफ, ये आपका ग्राफ। अच्छा ये टाइम एक्सिस के साथ में एंगल कैसा बना रहा है? ये एंगल बना रहा है ऑब्ट्यूज। कैसा एंगल बना रहा है? ऑब्ट्यूज बना रहा है, ओके। ऑब्ट्यूज अगर बना रहा है तो वेलोसिटी v क्या होगी? देखो ऑब्ट्यूज में v इज नेगेटिव, v इज नेगेटिव, कोई बात नहीं, ठीक है, हमने निकाल लिया बहुत इजीली। अब बाउल देखो, ये बाउल है, ये बाउल है, ये बाउल है, अब ये बाउल सीधा उल्टा है, ये सीधा बाउल है, तो ये एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अभी एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अब यहाँ पे मुझे बताओ कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सो हियर मैंने बताया था अगर a और v में ये दोनों कैसे हैं? ऑपोजिट। कैसे हैं? ऑपोजिट साइड है, तो यहाँ पे क्या होगी? वेलोसिटी डिक्रीजेस। क्या होगा? वेलोसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया था नीचे, आप वीडियो को दोबारा चला के देख सकते हैं, ठीक है। तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीजेस। सो हियर वेलोसिटी डिक्रीजेस, ओके। वेलोसिटी डिक्रीजेस कैसे? देखिए आप यहाँ से इनिशियली आप देखोगे तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी यहाँ क्या हो रही है? यहाँ इंक्रीज हो रही है। फिर देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है और वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट आगे नहीं जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट, टाइम कवर कर रहा है, तो वेलोसिटी शुड गेट डिक्रीजेस हियर। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। अच्छा और इसमें एक ग्राफ और हम देखते हैं, वन मोर ग्राफ। ये ग्राफ हमारा इस तरीके से कुछ है, ये ग्राफ आप मान लो, चलो ये हम बनाते हैं ये वाला ग्राफ ऐसे, ये ग्राफ, ओके। दिस इज मीटर, दिस इज टाइम इन सेकंड, okay students, I hope you are understand very well here, okay। अब यहाँ देखिए ये आपका पॉइंट मान लो, दिस इज वन पॉइंट, सीधा सीधा में आपको यहाँ पे क्या बताना है? वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, और वेलोसिटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ओके। दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे दिख रहा है ऑब्ट्यूज, ओके। क्या हो रहा है? वेलोसिटी क्या हो रहा है? नेगेटिव, ओके। ये आप देख रहे हो बाउल कहाँ है? नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन इज आल्सो नेगेटिव, और जब ये दोनों सेम हो गए, जब ये दोनों सेम हो गए इस कंडीशन में क्या हो रहा है? वेलोसिटी, ओके। इस वाले कंडीशन में क्या हो रहा है? यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ है, नेगेटिव नेगेटिव है, ओके। B is negative, A is negative, बॉल नीचे की तरफ, ठीक है, बॉल ऊपर की तरफ, बॉल नीचे की तरफ, बॉल नीचे की तरफ क्या है? बॉल नीचे की तरफ, सही सही, ओके, इट इज करेक्ट, ओके। तो हम एक और यहाँ देख लेते हैं, एक क्वेश्चन लास्ट, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑन टुडेज टॉपिक। ये आपका इस तरीके का ग्राफ बना लो, ये ग्राफ हो गया, ठीक है। ये आपका इधर, और ये एक पॉइंट है, यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, ठीक है। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, ओके।
इसको हाफ ऑफ डिवाइड कर दो, चलो ठीक है, हाफ ऑफ डिवाइड करोगे तो ये देखिए यहाँ पे ये तो डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या होगा, वेलोसिटी v इक्वल टू 0। इस वाले पॉइंट पे आप ऐसे चाहोगे कौन की बात है, ठीक है। तो ए पॉइंट पे क्या होगा, एट ए, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए वेलोसिटी v क्या है, पॉजिटिव, ओके। ये क्या है, ये है आपका नेगेटिव, ओके। और अब जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो क्या हो रहा है, डिक्रीजेस, ठीक है। वेलोसिटी डिक्रीजिंग, ठीक है। अब यहां देखते हैं एट पॉइंट बी पे गर्मी बहुत है, ये आपका एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी तो आपने निकाल ही लिया, 0 है। एट पॉइंट सी पे क्या आएगा, अब बनाइए यहाँ अगर आप बनाओगे ऐसे क्या आएगा, ऑब्ट्यूज, ओके, एक्यूट, पॉजिटिव, ओके। बी क्या आएगा, ऑब्ट्यूज में नेगेटिव, ओके। और इसके बाद ये आपका क्या आ रहा है, बी के बाद में ए, ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या थे, डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट के लिए क्या बात आता है, डिक्रीजिंग, यहाँ ऐसे, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सही है, इंक्रीजिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये ऐसे आ रहा है तो ऐसे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, क्या ये यहाँ से पहले ऐसे चल रहा है, कम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, ये आपका कम टाइम, ठीक है, ज़्यादा टाइम। तो जैसे जैसे टाइम यहाँ ऐसे जा रहा है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव वेलोसिटी है ना, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मींस बैक गियर में आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ बैक गियर में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन बैक गियर में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे बैक गियर लगा के और हम दौड़ाते हैं ना, स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलती है, फिर बहुत फास्ट, ओके, तो वो वाली कंडीशन है, ठीक है, ओके। सो दिस इज द थिंग। अच्छा यहाँ पे हम देखते हैं डिक्रीजेस क्यों है, तो यहाँ पे ये आपकी क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में तो आपने ये डिक्रीजिंग का ग्राफ देखा ही है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव, ठीक है, ये तो आपने पहले पढ़ा होगा, ओके। सो दिस मच ऑल वी हैव डन टुडे। इसके बाद में कल हम देखेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट के बाद में वेलोसिटी, टाइम ग्राफ, उससे रिलेटेड कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट, ओके। सो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।